Recording started. सर मैंने भी Okay. किया था मे में। हाँ बेटा, सर भरत बोल रहा हूँ, मैंने भी किया था मे बैच में। क्या बोल रहे हो बेटा? थोड़ा जोर वे- से बोलो आवाज का। सर मैं बोल रहा हूँ वेक्टर्स का मे बैच में मैंने भी किया था। हाँ, तो अगर तुम्हारा वेक्टर हो चुका है देन यू कैन स्किप ना. देयर इज नो नीड टू डू अगेन द सेम थिंग. देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि ओके सर। क्वेश्चन भी वही है. अच्छा। सेम क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ओके। तो यू कैन स्किप. तो देखो, विल स्टार्ट. सो जस्ट फॉर a quick kind revision, I will revise the things. Suppose हमने addition law किया था, triangle law. That was the addition law. This is vector A, and from the end of vector A, vector B starts. Okay, this is the angle between the vectors. Then if I want to represent the addition, then initial point of this and final point of this vector represents R, and we call it vector A plus vector B. Okay, I call this angle as alpha. Then I got two formula. One formula was magnitude of the resultant, that was a square plus b square plus 2ab cos theta, and then I got that direction of the resultant vector. So I will say that resultant vector is making angle alpha with x-axis, and the value of tan alpha is b sin theta upon a plus b cos theta. I would say this is magnitude and this is direction of resultant. फाइन, इतना हमने किया था ना बेटा? Everyone Yes, sir. remember? Yes. 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 Now we'll see how to apply these things in question. So suppose I'll take few examples. Okay. So let's come to lecture 1 only. It is saying that p vector, I'm doing this tutorial 1 lecture 1 question number 7. Okay, our question is magnitude of vector p equal to magnitude of vector q equal to magnitude of vector r, and I have given p vector plus q vector plus r vector equal to 0. Okay, no, just leave this question. We will come back to this after we done with the polygon law. We'll do after some time. So first I like to no, I'll not do that. I'll directly go to lecture 2. Okay, fine. Now I got the questions. So see, like question number 3, this is lecture 2 in class example ICE. Okay, so the question is the resultant of two vectors. So there are two vectors of magnitude 2a and root 2a. Okay, resultant is root 10a. Find angle between the vectors. Angle between vectors. So ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं पहले in terms of physics. Okay, now this is a question of English. Now we'll convert it into physics. So how will we do that? We'll say two vectors of magnitude 2a and root 2a. So there are two vectors. So I have given vector a. The symbol for magnitude is this bar. So magnitude this 2a. Suppose I'll write out as small a.
and magnitude of vector B, the second vector, magnitude of vector B is root 2a, and suppose angle is, I assume, as theta, and I have given magnitude of vector R is root 10a. Now tell me which formula you will apply. I have vector A का magnitude, vector B का magnitude, vector R का magnitude, and I need to, so I will use the formula, this one, this formula 1, right? So the formula is R square equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. I'll put all the values. So what will be the square of R? 10 A square plus, what is the, this is vector A. Vector A कितना है? 2A. Okay, so 2A का whole square plus, what is vector B? Root 2A square. 2 into 2A into root 2A into cos theta. Fine? Yeah. Yeah, everyone? Yes, sir. Yes. Now solve it. So it will become 10A square. It will become 4A square. This will become 2A square plus 2 to 4. So it will be 4 root 2A into A square cos theta. You can cancel out A square because in the average term we are getting A square. So A square will be cancelled out. So this will become 10 equal to 4 and 2, 6 plus 4 root 2 cos theta. Now tell me what will be the value of cos theta? 10 minus 6, 4. So cos theta will come out to be 1 by root 2. Now theta is how much? 45 degree. I know cos 45 degree is 1 by root. So if I want to draw the diagram, then my diagram will be like, this is vector A. Okay. Now I have to make a vector with an angle 45 degree. This is vector B, and this angle is 45. Okay. Now this vector will be resultant R. Okay, now tell me what will be the value of this angle alpha. If I ask what is the angle made by the resultant vector with vector A, so on which formula you will use? Tan alpha. Tan alpha. So tan alpha is, formula is B sin theta upon A plus B cos theta. So what will it become? Tan alpha equal to, what is the value of B? Root 2A. Okay, so root 2A. What is sin 45? 1 by root 2. Fine. Okay, then A, what is A? 2A plus, what is B? Root 2A. What is cos theta? 1 by root 2. So it will become A upon 2A plus A. So it will become 1 by 3. So what is the value of 1 by 3 approximately? Suppose I say tan alpha equal to 1 by 3. तो बताओ हमारे पास, अगर मैं तुमको अल्फा की वैल्यू दूं, अल्फा I will say between 0 degree to 30 degree. Between 30 degree to 45 degree. बताओ which one is right? हाँ बेटा, 0 to 30. 0 to 30. 0 to 30, because I know that if I want 10, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree. So 0 is 0. This is 1 by root 3. This is 1. This is root 3. So basically, as the angle is increasing, the value of 10 is also increasing. So if I say 1 by 3, 1 by 3 तो 1 by कहते root 3 से छोटा है ना, तो 1 by 3 lies between here somewhere else here. So angle will be less than 30 degree. Okay, or you can always say that alpha will
always be less than theta. Yes, इस अपने डायग्राम से कह सकते हो ना, अल्फा विल ऑलवेज Yes, sir. लेस देन थीटा, क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू थीटा से बड़ी हो गई तो हमारा कहते हैं ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, फिर तो छोटा होना ही पड़ेगा ना उसको. सो एंड दिस इज हाउ वी अप्रोच फॉर क्वेश्चन. ओके, got it everyone? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay, suppose we'll take some more example. The resultant of two vector p and q is r. Okay, the resultant of this is the question number 5 and same lecture to ice. So the statement is the resultant of the resultant. So if I say resultant of p and q is r. Okay, bas we have to analyze the statement one by one. So I have given this thing. So batao, what equation I can write from this statement? I can write, suppose I say from 1, I can write r square equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. Fine. Right, I can write, see, r vector is p vector plus q vector. This is my condition 1. They have specified that r vector is the resultant of p vector and q vector. So r vector will be p vector plus q vector. So the magnitude of r vector will be this. So this is my equation 1. Now, if q is double, if q is double, then resultant is perpendicular to p. Now tell me what will happen. So now this is saying, so I will say from 2. तो अभी हमारे पास कंडीशन क्या है बताओ, अब हम किस किस का एडिशन कर रहे हैं? वी आर सेइंग वेक्टर p एंड 2q. सर राइट सर डाउट सर, आपने अज्यूम कैसे किया q इज डबल्ड, उसका मतलब क्या है? नहीं ना, वो तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में. अच्छा, क्वेश्चन ठीक. द होल क्वेश्चन इज दिस, जो पूरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, ये. ओके सर. और इसमें पूछा है देन फाइंड r. ये हमारा क्वेश्चन है. सो आई हैव रिटन स्टेटमेंट वन बाय वन. सो जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट से मैंने ये लिख दिया. तो सेकंड स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इफ q इज डबल then the resultant is perpendicular to vector p. Okay, if you want I can show you. ये बहुत स्लो हो रहा है यार. चलो ठीक है, इसको होने दो एक साइड में, है ना. अब वो बोल रहा है कि वेक्टर p और q को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया. डबल करने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. राइट. सो नाउ द रिजल्टेंट, सपोज नाउ द रिजल्टेंट इज r डैश. ओके, r नहीं रहेगा ना, r डैश हो जाएगा समथिंग एल्स. तो मुझे दिया हुआ है कि r डैश जो है उसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री विद वेक्टर p. अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे इसमें? सो हमारा जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा बन गया. दिस इज वेक्टर p. ओके,
दिस इज वेक्टर 2q। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या बन गया, ये बन गया, इसको मैंने बोल दिया r डैश, और ये एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। और हम मतलब इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं ना, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद एंड वन ऑफ द वेक्टर, राइट? Yes, sir. So now tell me what is the formula for tan alpha? क्या ये यहाँ पे फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, इसको सपोज मैंने बोल दिया b, इसको मैंने बोल दिया a, तो क्या फॉर्मूला होता है और 2q b cos sin थीटा, थीटा, b sin थीटा होता है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 2q, 2q sin थीटा, हाँ sin थीटा आता है ना डिनोमिनेटर में, 2q sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा, what is a, p, p, p 2q cos theta, and I have given the value of alpha is 90, so what is the value of tan 90, tell me? Sir, infinite. Infinite, मतलब infinite, और I can say undefined, I don't know, ठीक है? और ये जो मेरे पास में पूरा बॉक्स है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ओके? So I'll say p plus 2q cos theta should be equal to 0. 0, ओके? सो देखो, तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा 2q cos theta equal to minus p. I will put this p here. So what will my equation be? R square equal to p square plus q square plus 2. इसको मैंने ऐसे रख दिया p को, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q cos थीटा, या फिर 2q cos थीटा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस p बाई 2, सो इट विल बिकम r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो p स्क्वायर विल कैंसिल आउट, सो q स्क्वायर, तो आई कैन से r इक्वल टू q। ये हमारे पास में आंसर आ गया। So what we did, we actually converted the statements, whatever statements were given in the question, we converted all those statements in form of equation, and then we got the answer. सर वो मतलब इक्वेशन 1 में 2pq cos थीटा था, ठीक है, हाँ और अब हम लोग को 2q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस पी लिखा है, तो आपने डायरेक्टली 2q cos थीटा को माइनस पी क्यों नहीं लिखा? हाँ, उसको भी लिख सकते हो, एक ही बात है, वो तो मैंने अपने लिख दिया था ना, उसको इरेज करने के लिए मैं सोचा ठीक है अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है ना, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना? हाँ हाँ, तो उसको रिप्लेस किया, बेसिकली कहते हैं सब्स्टिट्यूशन हमने किया है ना? हाँ। ओके, चलो एक क्वेश्चन अब मुझे तुम बताओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ 3 मीटर एंड 4 मीटर। अब आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, हाउ टू गेट 7 meter, how to get 5 meter, how to get 1 meter, okay, बताओ। तो ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑफ दिस एंड रिजल्टेंट, आर मिनिमम क्या आएगा बेटा इसमें, और आर मैक्सिमम क्या आएगा? मिनिमम What is 1 आएगा, minimum is 1 or a minus b, and what is maximum 7. 7. So I can make all three vectors, I can make all the vectors from 1 to 7, okay. 1 is the minimum value, कब आता है minimum value? When theta is 180 degree, so I say opposite vectors, right? So if I'll say this is 4, this is 3, तो इसका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा 1। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको 7 के लिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3,
तो हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू 0। इसमें क्या करना पड़ेगा 5 में? व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स? 90. 90 degree. If you don't want to remember, just put the formula. So I will say 5 equal to root 3 square plus 4 square plus 2 into 3 into 4 into cos theta, r equal to root of a square plus b square. So it will become 25 equal to 25 plus 24 cos theta. So it will come out cos theta equal to 0. That means theta equal to 90 degree. So I will say theta equal to 90 degree. Fine. Yes, sir. Okay. Okay, we'll do few more question. So I now I will give you two question. One is question number 9 from the lecture 2 tutorial. So the question is, we are given vector A plus vector B equal to vector C. So I can say C is the resultant of A and B. Yes. What I'm given? Magnitude of vector A is given 4. Magnitude of vector B given 5 and magnitude of vector C given root 61. Find angle between the vectors A and B. Okay, and इसका diagram भी बनाना है. Okay, everyone solve it and send me your answers. कि भाई तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सर वो मैग्नीट्यूड सी की वैल्यू क्या लिखते हैं? Magnitude of सी वेक्टर सी 5. और सी आपने √6 लिखा है ना? 61 root अच्छा, 61. √61. ओके. सर cos थीटा 1/2 आ रहा है. Cos theta 1/2. 2. हाँ. हाँ तो बताओ अपने पास थीटा का वैल्यू कितना आएगा फिर? 6 cos 60. 30 30 30 या 60? 60 ना? 60 है ना सर? 60 है बेटा, cos है ना, साइन नहीं है. साइन में तो होता है cos 30 के. थीटा हाँ 60. हाँ. तो देखो हमको इतना सोचना ही नहीं है इसके अंदर, सिंपली हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो व्हाट विल से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Then I'll put all the values. So it will become 61. A square is 16. B square is 25 plus 2 into 4 into 5 into cos theta. So it will become 61 equal to, ये कितना बन गया? 41 है ना? हाँ, प्लस 40 cos theta. So it will become cos theta equal to 20 upon 40 half. So I will say theta equal to 60. Okay, डायग्राम बनाओ. तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? This is 4, that this is 5 and the angle is 60 degree. So my resultant will be this.
this is vector C, this is vector A, this is vector B. Right? Okay. What will be the value of my alpha? Suppose I ask you direction. सर वो फॉर्मूला लगाएंगे सर, b sin थीटा अपॉन a प्लस b B cos sin theta upon A plus B प्लस बी cos थीटा। cos theta. ठीक है, तो हमारे पास B का वैल्यू 5 है, तो 5 sin 60 अपॉन 4 plus 5 cos 60. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 5 ऊपर कितना आएगा? √3/2. ये बन जाएगा 4 plus 5 1/2, तो 5 √3 अपॉन 30. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब हमको इसकी वैल्यू अपने ने पता नहीं होती है, तो हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, बिकॉज वी डोंट नो द एंगल ऑफ सच कहते हैं रैंडम वैल्यूज, तो विल लीव दिस लाइक दिस. सर. सो तो फिर अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ हाँ यस, तो हाँ, तो हम लिख देंगे इसको कि अल्फा इज tan इनवर्स whatever is this 5√3 upon 30. Fine. Avi? हाँ. Yes, sir. Everyone? Anyone having any doubt? Raise your hands. Yash 11th. Sivud. हाँ बेटा, what happened to you? Sir, when did class start? Yash? Unmute yourself. क्या हुआ? है क्या यश? है ही नहीं. हाँ चलो, फाइन. तो अब ओके, now I think you are comfortable with my addition. Now you can attempt that lecture 2 part. Okay, now I'll do one more thing. थोड़ा सा पहले उस पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पर्पस. डिस्प्लेसमेंट सबको पता है क्या होता है? व्हाट इज एन डिस्प्लेसमेंट? आई थिंक यू हैव हर्ड दैट वर्ड इन योर क्लासेस. हाँ, क्या होता है बेटा? shortest distance from starting point to ending point. Okay, shortest distance from starting point to final point, right? और वो जो डिस्टेंस कैसे आएगा? सपोज एक पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले वो यहाँ गया, ठीक है, फिर वो यहाँ गया, ठीक है, फिर वो यहाँ गया, और फिर वो यहाँ गया. यहाँ से स्टार्ट किया, पहले A to B, C, D, E. If I ask you what, और फाइनली यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे. So what is the displacement in this question? सर वो A और E के बीच में डिस्टेंस. Yes. तुम ऐसे बोलोगे ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये इसको बोलते हैं ना. तुम बोलोगे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड initial position, right? So and this is called polygon law. Okay, suppose now, till now we have done that r vector is a vector plus b vector. इतना हमको आता है. तो ये हमारे पास में किसके लिए है? फॉर टू वेक्टर्स, राइट? और इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज वेक्टर ए, इसके एंड पॉइंट से एक और वेक्टर स्टार्ट हो गया, दिस इज वेक्टर बी, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? दिस वेक्टर, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? हाँ भाई,
Yes, sir. Okay, now who will tell me what is the definition of polygon? क्या होता है polygon? A figure having more than 4 sides. More than 4 sides, 3 sides. जो भी. Sir, closed figure. yes, any closed figure. It can have at least a 3 side because with the 2 side you cannot make a closed figure ना. So the smallest closer figure is a triangle, right? उसके अंदर हमारे पास 3 side है. तो triangle is also a polygon. ठीक है? बट इसके अंदर कितनी साइड है? 3. स्क्वायर बनाओगे उसमें कितनी साइड्स हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी. 4 साइड्स. फिर हमारे पास क्या आता है? पेंटागन, हेक्सागन, है ना, ऑक्टागन. तो जो भी उनके साथ जो नंबर आता है, जो उनका इनिशियल जो टर्म है, that tells us the number of side, right? जैसे कि अब ट्राइंगल होता है तो उसमें तो इनिशियल वर्ड है ट्राई, वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ साइड. 3 sides. Okay, okay. So if I want to add 2 sides, then I will make a triangle. So suppose, but now what is happening? If I want to add a vector plus b vector plus c vector plus d vector plus e vector plus f vector and so on, so many vectors are there, then how will I add them? So for that I have a mechanism. I will use my polygon law. How? Suppose this is my vector 1, this is vector a. So what I will do, I will put my second vector here. This is my vector b. So now tell me, a and b, इसका एडिशन क्या होगा बेटा? बताओ. Tell me. Sir, R. R, but I will draw that in this diagram. This line is R vector. a vector plus b. I will not use that word r. R is the resultant ना, तो resultant में ये तो सब है, इनका result is r. So I will say this and red line is vector a plus vector b, and it will have arrow like this from this point to this point. Fine. Now suppose here is my third vector, this is my third vector c. So if I want to a plus b plus c, so now check red line. I started from here, I came here, then I came here. So what will be the a plus b plus c? The line joining A and C. starting point of a and end plus C. point of no. Okay, you tell me what is this line? This है purple line, किसको represent करेगा? A plus A plus B plus C. C. B plus C, because it is the addition of a red line plus black line, and red line is a plus b and black line is this C. So this will become this. Now suppose there is one more vector. Suppose I have vector D. So now tell me the initial point of A and final point of D. If I add these two, then what will that be? What is this sky blue line? A A plus plus B plus C plus D. Okay, this is addition of a purple line plus Red line. green line. So it will become A plus B plus C plus D. D. Fine. Suppose I have one more vector. ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं ना. Okay, suppose मैं यहाँ तक ही लेता हूँ. ये हमारा वेक्टर लास्ट वेक्टर है E. ठीक है. Suppose यहाँ से F को हटा दिया. हमारे पास इतना ही.
So if I want to know a plus b plus c plus d plus e, तो बताओ क्या करना है? अब जो स्काई ब्लू लाइन है और जो ब्लैक लाइन है उसको ऐड करना है, राइट? Yes, sir. So what will be my addition? This line. This I have made so thick. This line. और इसका एरो कहाँ की तरफ आएगा? नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ? A to E. A to E. Fine. Yes. So arrow of this line is there. So basically हमने क्या किया? हमको किस किस को एडिशन करना? सपोज मुझे ये 2 3 4 5 इन सब का एडिशन करना है, तो मैंने क्या किया? पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? Resultant of all the vectors, and displacement is a vector quantity. So how do we solve that? We just join the last point to initial point. So this is my displacement, and this is called polygon law. Okay. Now if we want to make the statement of the polygon law, so I will say पहला statement बनाना है, तो if we want to add n minus 1 vectors, then put n minus 1 vectors on sides of a polygon of n side. नहीं, just polygon, then nth side will represent the resultant. फाइन. हाँ भाई, इसमें देखो ना, हमने क्या किया कि अगर हमको यहाँ पे कितने का बना 1 2 3 4 5, we have to find the resultant of 5 vectors. So we made a polygon of a 6 side. 1 2 3 4 and 5, and the addition of these 5 vectors is my sixth line. Sixth side जो है, that will show the addition of these vectors. Fine. All these arrows should be in the same sense, otherwise my triangle law will not work. So now one more thing. Suppose मुझे इसका addition बताओ. Suppose मैं यहाँ गया और फिर मैं यहाँ गया, ठीक है? ये साइड भी A है, ये साइड भी है, ये एंगल 60 है. बताओ. इसको मैंने बोला वेक्टर P, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर Q. So what is the angle between vector P and vector Q? P plus Q is equal to 60. अबे, I am asking what is the angle between vector P and Q? 120. 120. पहले मुझे बताओ कि 60 डिग्री कौन कौन बोल रहा है? Names. Anyone who is saying 60 degree? I have to check in that. Good. 120, क्योंकि we have to check the arrow also. Okay. If I want to add these two vectors, okay, remember what I'm saying. Then from my polygon law, कि क्या बोलता है polygon? तुम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ऐड कर दो, है ना? ये इनिशियल, ये फाइनल, इसको हमने मिला दिया. हमको पता है ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा. इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? A. तो ये हमने किससे किया? पॉलीगन लॉ से, राइट? और इफ यू रिमेंबर, we did the same thing in our last class by triangle law, right? याद है?
Yes, sir. हाँ, तो एक ही क्वेश्चन को करने के वी आर हैविंग सो मच ऑफ मेथड, क्योंकि पॉलीगन लॉ जो है वो हमारा ट्राइंगल लॉ से ही तो बना है। हमने छोटे छोटे कहते ट्राइंगल को ऐड करके एक पॉलीगन बनाया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सपोज I'll use this. Suppose we have to find out addition of 3 vectors. One vector is okay, no, one more thing. For क्लोज फिगर का हमको निकालना है, तो सपोज जैसे कि हमारे पास ये है एक पेंटागन, ठीक है? एक वेक्टर ये है A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर C, ये वेक्टर D, ये वेक्टर E। अब मैं पूछता हूँ फाइंड A वेक्टर प्लस B वेक्टर C प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर। बताओ क्या आएगा? आई विल आस्क वन बाय वन। Okay, Riya from Seawood. Yes, sir. Okay, tell me what will be the answer. If I ask you, there are 5 vectors और 5 vectors को मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है, then what will be the addition of these 5 vectors? ओके चलो, अगर इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो मुझे बताओ। एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया चलना और घूम फिर के वो वापस वहां पे आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो तुम्हारा मैन है यहाँ से स्टार्ट किया, पहले वो यहाँ गया, फिर वो कहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ पे आ गया। तो बताओ ना उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? Displacement तो 0 हुआ. Okay, displacement is also a vector quantity and we are also solving the vector addition only. So what should be the answer? 0. Okay? कैसे? अभी तुमको एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी तुमको अब जितने वेक्टर्स का एडिशन करना है, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट वेक्टर का लास्ट पॉइंट को ऐड करना है, राइट? सो लास्ट वेक्टर मेरा कौन सा है? E, उसका लास्ट पॉइंट कहाँ पे है? ये है जो कहते हैं तुम्हारा रेड वाला बनाया। और जो इनिशियल वेक्टर है वेक्टर A, उसका इनिशियल पॉइंट भी कहाँ पे है? यहाँ पे। ये बताओ इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 0। Yes, sir. ओके, अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो चलो ऐसे करते हैं। बस ये बताओ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, तो पहले सिर्फ मैं ये है ना इनको एडिशन कर रहा हूँ, A प्लस B प्लस C प्लस D, और E को बाद में ऐड करते हैं। ओके चलो बताओ मैं इन सब का एडिशन क्या आएगा? कौन सी लाइन आएगा? पहले तो एक A से B तक यहाँ जाएगा. से नहीं, हाँ नहीं, मुझे बताओ ना इन सब का रिजल्टेंट। अरे A plus B plus C plus D. हाँ, कौन सी लाइन आएगा? ये जो लाइन आएगी, ये वाली लाइन जो आएगी, ये जो मैं, और इसका एरो मैंने क्या बताया था? इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये यार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लैक लाइन क्या है? ब्लैक लाइन A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर है, मानते हो? हाँ भाई, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये तो हमने इसी से किया है ना, पॉलीगन लॉ से किया है। ओके, नाउ आई हैव टू ऐड वन मोर वेक्टर इन दैट, एंड दैट वेक्टर इज दिस वन। ये उसका एरो कहाँ की तरफ है? नीचे। अब बताओ इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि देखो ना इनका लेंथ सेम है, और इनका डायरेक्शन कैसा है? Opposite.
ऑपोजिट, तो बताओ एक वेक्टर यहाँ की तरफ एक्ट कर रहा है, एक वेक्टर यहाँ की तरफ एक्ट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, इसका भी ए है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? 0. 0। तो बताओ जब मैं इस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को e के साथ में मतलब कि ऐड कर दूंगा तो रिजल्टेंट क्या बनना चाहिए? 0। ठीक है। सो सेम जो हमने पॉलीगन लॉ किया है, या तो ऐसे बोल दो या फिर ये बोल सकते हो कि तुमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था तुम उसी पॉइंट पे आ गए हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। ओके। हाँ भाई। सर यस हाँ हाँ भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन? सर, इसका ये पॉलीगॉन लॉ का ऐसे मतलब कोई स्टेटमेंट है क्या, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन कुछ? नहीं, एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलीगन लॉ हम कहते हैं भाई पॉलीगन के अंदर तो कितनी भी साइड्स हो सकती है ना, तो हम कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते ना। हम ये कहेंगे कि द फाइनल साइड, दिस साइड विल बी द रिजल्टेंट। अब साइड को कैसे फाइंड करना है उसमें तुम अपना वो लगाओ, सर ज्योमेट्री लगाओ उसके अंदर। सर एक बार रिपीट करो ना वापस वो 0 वाला। भाई तुमने जहां से स्टार्ट किया था वो वहां पे वापस आ गए ना भाई। देखो ना, यहाँ से हाँ स्टार्ट सर, किया था। वो समझो, रिजल्टेंट नहीं समझे मुझे कैसे के। हाँ, तो रिजल्ट पहले बताओ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जहाँ पे मैंने अपने ट्रिपल एरो लगा रखे हैं, तो इन सब का एडिशन क्या आएगा? ब्लैक वाली लाइन आएगा ये। हाँ सर। एक बार के लिए इसको भूल जाओ, ये वाला। ये जो मेरे पास में वेक्टर है, पर्पल वाले जो वेक्टर हैं सारे, इन सब का जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा? ब्लैक वाली लाइन है। यस सर। भाई इतना पता है सबको, एवरीवन? ओके। बट इन माय क्वेश्चन मुझे क्या ऐड करना, मतलब कि इसमें एक और चीज मैं ऐड करनी है ना, ई। और वो कहाँ की तरफ है? ई यहाँ की तरफ। उसका एरो कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ। अब अगर मैं इसके साथ में इसको भी मतलब कि कंबाइन कर दूंगा तो इफेक्टिव कितना बन जाएगा? 0। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है ना, अपोजिट वेक्टर हो गए ना दोनों। ओके सर। तो बताओ अगर मैं a प्लस बी प्लस डी प्लस ये कर दूंगा e, तो मेरा क्या बन जाएगा? 0। हाँ अच्छा, समझा सर। समझा ना? ओके। सी, जैसे कि अपना एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ भी एक फोर्स लगा रखा है 2 न्यूटन, यहाँ भी एक फोर्स लगा रखा है 2 न्यूटन, यहाँ भी एक फोर्स लगा रखा है 2 न्यूटन। तो फाइंड कितना आएगा नेट फोर्स? सपोज ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल, दिस इज फोर्स 1 जिसको मैंने बोला F1, ये मैंने बोला F2 और ये हमने बोल दिया F3। हाँ बताओ, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी? हाँ 0. 0. बस जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आ गया ना मैं तो। और मैंने बोल दिया कि देखो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, एंगल दिए हुए हैं, तो मतलब कि ये साइड ये साइड ये साइड कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास में रिजल्टेंट कितना बन गया? 0। ओके, इफ आई आस्क व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, बताओ क्या है? 120. 120. 120। देखो ये चीज मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है? Angle between F1 and F2 is 120 because you have to see the direction of arrow. Now I just modified that. मैंने क्या बोला? 3 forces of magnitude 1, 2 and 3 are acting along the sides of a equilateral triangle. Find resultant, बताओ क्या आएगा? क्या आंसर 0 आएगा? Yes, sir. नहीं, बिकॉज मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। बेटा देखो यहाँ पे सबके मैग्नीट्यूड सेम थे, तो इसने क्या बोला है कि सपोज
ये एक तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। तो ये मेरे पास फोर्स 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 न्यूटन। ठीक है भाई, बोला है ना। जो सेकंड वाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2, यहाँ की तरफ ये हो गया 2, और इसका एंगल कितना बन रहा है, ये अंदर वाला एंगल 60। अब हमने एक और बनाया जो कि यहां से आ रहा है, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60। तो इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन। अभी देखो एकदम सही है। There are 3 forces acting along the side of equilateral triangle. हाँ भाई, जो भी मेरे फोर्सेस हैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, all 3 forces are acting along the side of this. अब मैं इसके अंदर एक चीज लगाता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैंने ऐसे लिखा, वन वन वन, ओके, एंड 1 2। ओके, इज इट कहते राइट और रॉन्ग? ये जो था 2, इसको मैंने लिख दिया 1 + 1, इसको ऐसे लिखा 1 1। ये था 3, तो इसको लिखा 1 एंड 2, एक ही बात है ना। सर पर वो मतलब मेरे को समझा नहीं सर कैसे लिखते। अरे अगर मेरे पास में एक वेक्टर यहाँ पे है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 न्यूटन एंड और क्या 1 न्यूटन, डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही है। हाँ तो यहाँ भी मैंने ऐसा ही किया, जो उसका 1 न्यूटन का जो साइड था उसको तो अपने ट्राइंगल के अंदर अपने इंक्लूड कर लिया, और बाकी जो था उसको एक्सटेंड कर दिया, ये लो बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखो 1 1 1, इसका एडिशन कितना बन गया, ये 0, क्योंकि ये तो इक्विलैटरल का ट्रायंगल अपना बन गया ना, और इक्वल साइड्स हैं। अब इसको हटाने के बाद हमारे पास में क्या बचा, एक तो यहाँ पे बचा फोर्स 1 और एक बच गया ये वाला 2, और इनके बीच में एंगल कितना है बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स 2 एंड फोर्स 3, 120 डिग्री ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल कितना था 60, तो ये एंगल बन गया 120। तो बताओ कि क्या आएगा रिजल्टेंट, r विल बिकम √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 × 1 × 2 × cos 120, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 1 + 4 प्लस ये क्या बनता है, क्या बन जाएगा 4 cos 120 माइनस हाफ, तो 1 + 4 - 2 कितना बन गया √3। तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा √3। हाँ भाई, किसी को डाउट, एनीवन? सर हाँ सर हम लोग ये बिना स्प्लिटिंग के नहीं कर सकते? देखो कर तो सकते ही हैं, ठीक है, लेकिन उससे इजी नहीं पड़ेगा ना, इससे एकदम इजी पड़ गया। वी हैव टू चूज द मेथड विच इज द इजी वन। अभी थोड़े दिनों बाद हम कंपोनेंट करना सीखेंगे, तो जब कंपोनेंट करना आ जाएंगे तो उससे तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस इज नॉट ओनली द मेथड। ओके, देयर आर सो मेनी मेथड टू सॉल्व ए क्वेश्चन। इसके अंदर हमने क्या क्या एलिमिनेट कर दिया ना भाई। अगर तुम्हें कोई ये बोले कि जैसे एक मान लो एग्जांपल लिया सिंपल सा ही, कि ये हमारे पास में एक बॉक्स है, यहाँ पे मैंने लगाया 10 न्यूटन और यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन, तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? पाई टुवर्ड्स राइट। हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो था मेरे पास में 10, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 5
5 और फिर यहाँ पे एक 5। तो पहले मैंने क्या किया, इस 5 को और इस 5 को एनालाइज किया, कितना बन गया, 0 बन गया, इसको हटा दिया, तो अब उसके ऊपर कितना बचा, 5, राइट। तो यहाँ भी हमने ऐसा ही किया। इफ देयर वर 3 फोर्सेस 1 2 and 3, so what did I do, I just मतलब eliminated the triangle thing which was getting cancelled out। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये किया ना, 5 and 5 को कैंसिल कर दिया, वो चीज। ओके सर। ओके हाँ भाई। यस सर। हाँ चलो अब देखो, अपने एक्सरसाइज निकालते हैं लेक्चर 1 का। अब देखो लेक्चर 1 में बोला है कि किसी ने तो मुझे व्हाट्सएप किया था एक क्वेश्चन कि सर 3 vectors of equal magnitude are making angle 120 degree, then find the resultant। तो बेटा क्या बन जाएगा, किसने पूछा था मुझसे ये, किसी ने तो अपने व्हाट्सएप किया था, मुझे याद है, वो सेंड में। तो if I have 3 vectors magnitude is same, तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ये लो उसका अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इनके बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल 120 120 120। तो इनका रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, 0, बिकॉज दे आर मेकिंग ए क्लोज फिगर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके ओके, सबके पास में ये है अपना असाइनमेंट। हाँ भाई, हाँ है। इसका इसका मुझे क्वेश्चन करके बताओ। लेक्चर 1 ट्यूटोरियल 1, इसका मुझे क्वेश्चन करके बताओ तुम। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ओके बताओ, नाउ ओनली। अभी सबके पास में है क्या, या फिर रुको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन मेरे पास अगर है तो। हाँ दिख रहा है सबको, एवरीवन। चलो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, इनको अभी सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। सर 8 मैंने किया है। हाँ 8 वाला सम किया है मैंने सॉल्व। कब किया था बेटा हमने क्वेश्चन, ये तो नहीं किया था। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन। लिखो लिखो, आराम से सॉल्व करो, उसका भी डायग्राम बना बना के।
तो और ए तो वाला कैसे करते हैं? हाँ बताओ बेटा, मतलब कि आपका आंसर क्या आया? मैं नहीं समझ रहा। ओके, तो पहले जो उसके अंदर वो किया हुआ है ना, जो स्टेटमेंट हमको इंग्लिश में दिया हुआ है उसको फिर डिकोड करो अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो क्या दिया हुआ है? टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन का? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, राइट? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो पहले देयर आर टू वेक्टर्स, तो हमने अज्यूम कर लिया। तो पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। व्हेन दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज 10। तो उसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? 10। हो गया 10, हो गया। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, क्या मतलब होता है राइट एंगल का? ये ऐसे ना। यस। तो इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट राइट एंगल देन व्हाट इज द रिजल्टेंट? क्या फॉर्मूला होता है? 50। ये आता है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 क्या बन गया? 0 बन गया, हटा दो। तो क्या बन गया? हमको आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है? 2500, है ना? हाँ। 50 का स्क्वायर कर देंगे तो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो अपना 0 बन गया ये तो, cos 90। अब बताओ, हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, कर लोगे? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास वैल्यू आता है, ए का वैल्यू आएगा 40, बी का वैल्यू आएगा 30। ओके। ओके ओके, नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 9। try. There are three vectors. सर उसमें 3 वेक्टर्स का बोला सर रिजल्टेंट। हाँ हाँ, यस यस यस, देयर आर थ्री वेक्टर्स। तो पहले क्या करो, किसी भी दो वेक्टर का निकालो, फिर हाँ उसके बाद में थर्ड को भी एक्ट कर दो साथ में। सर, पर एक कोई तो वेक्टर रिपीट होगा ना फिर? नहीं, क्यों होगा? तो यू मतलब अगर कैन, 3 हाँ वेक्टर है बोल। तो 1 और 2 और 2 और 3। नहीं, तो मैं पहले करूंगा ना कि 1 और जो 2 है उनको ऐड करूंगा, एक वेक्टर बन जाएगा मेरा। हाँ। उस एक वेक्टर को अपने तीसरे के साथ में ऐड कर दूंगा यार, अच्छा। है ना? हाँ। तो देखो, जैसे हमको वेक्टर कहाँ दिए हुए, एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर। आर। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास में ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? आर। तो पहले तो एक काम करते थे, बीच वाले को भूल जाते हैं एक बार के लिए। मुझे बताओ कि ये जो दो वेक्टर हैं, इन दोनों का एडिशन कहाँ आएगा? अब देखो, इस वेक्टर को उठा के मैंने इधर रख दिया, ये देखो, क्या ये वाला वेक्टर अपना पर्पल वाला वेक्टर, नहीं जो अपना कहते हैं, हाँ पर्पल वाला वेक्टर और जो अपना रेड वाला वेक्टर है, ये कैसे इक्वल वेक्टर है कि नहीं?
इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और Yes, दोनों sir. का अपना डायरेक्शन भी सेम है। तो तो इसका जीरो और होगा इसका ना, नहीं बेटा, जीरो नहीं होगा। देखो मैग्नीट्यूड सेम है ना। 2R है magnitude सर, नहीं 2R। बेटा, 2R भी नहीं है। तो देखो ये पहले यहाँ पे बताओ, ये जो मेरा एरो है जिसको मैंने बोला ओ सी, ठीक है, इस वेक्टर को उठा के, जो ये वाला वेक्टर था ना ओ ए वाला, इसको उठाकर मैं यहाँ लेके आ गया, तो ये क्या बन जाएगा ओ ए। अब बताओ ओ सी और ओ ए, बताओ इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा ट्राइंगल लॉ से? ये आएगा ना बीच वाली लाइन, ये ट्राइंगल लॉ से। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, two sides of a triangle by two vectors, then third vector will be the resultant। तो देखो जैसे मैं क्या कह, अब हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट और डायग्राम बनाते हैं। तो हमको बेसिकली फाइंड आउट करना है ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर हमारा बीच में है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी r, इसका मैग्नीट्यूड भी r, इसका मैग्नीट्यूड भी r, सही है। इसको मैंने बोल दिया वेक्टर 1, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर 2, इसको हमने बोल दिया वेक्टर 3। फाइन, इनका एडिशन फाइंड आउट करना है ना हमको। 40। हाँ भाई, तो पहले हमने फाइंड आउट किया एडिशन ऑफ वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। So first I will draw only vector 1 and vector 2. So this is vector 1, इसका magnitude r, and this is my vector 2, इसका magnitude भी r। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना इनके बीच में। ये मेरा वेक्टर 2, this is my vector 1। Now if I want to apply the triangle law, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता ट्राइंगल लॉ। वो क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ, कि सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से अटैच होना चाहिए। तो हमने इसका इक्वल वेक्टर बना दिया। इसका इक्वल वेक्टर क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? ये वाला देखो, इसका एंगल भी कितना है 90 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है r। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ब्लैक वाला 2 और पर्पल वाला 2 कैसे इक्वल वेक्टर्स हैं? यस हाँ भाई, Yes, sir. किसी को ब्लैक वाला वेक्टर, ब्लैक वाला 2 वेक्टर जिसके ऊपर मैंने ये लिखा है ना 2, ये वाला 2, तो ब्लैक वाला 2 वेक्टर और पर्पल वाला 2 वेक्टर कैसे इक्वल वेक्टर हैं या नहीं? बताओ क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होता है, राइट। So black and purple are equal vectors because they are having the same magnitude r and they are in the same direction. So these are equal vectors. So I can replace, I told you one thing ना, parallel shift. So हमने इस वेक्टर को parallelly यहाँ से कैसे शिफ्ट कर दिया। So this is my vector 1, this is my vector 2. So what will be the addition of these two vectors? बताओ क्या ट्राइंगल लॉ से? ये साइड ये आएगा ना, तो ये भी r है, ये भी r है, ये जो आएगा लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? √2r होता है ना, r² + r²। ओके, ये भी r है, ये भी r है, ये एंगल कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। देखो अपना tan थीटा लगा के। हाँ 1/√। ओके, तो ये मेरे पास में क्या है, वेक्टर 1 + वेक्टर 2। अब हमको इसमें क्या ऐड करना है? वेक्टर 3, राइट। वेक्टर 3 तो ऑलरेडी कहाँ पे है? अपने इसी एंगल पे है ना, 45 पे। तो इसके साथ में मुझे एक और वेक्टर को ऐड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? r। अब बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, स्काई ब्लू एंड कहते रेड? 0 डिग्री। और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो उनका एडिशन क्या बन जाएगा? सिंपल एडिशन, √2r + r। सो दिस इज फाइनल हमारा रिजल्ट है। सो दिस विल बिकम r √2 + 1। बताओ किस किस का आया?
हेलो हेलो, यस सर। अरे सब लोग हो ना, एकदम से कहते हैं सन्नाटा हो गया यार। हाँ बेटा बोलो। सर √2r के बाद वो फिर से समझाइए ना। ओके, √2r रूट निकला टू, उसके बाद। नहीं ओके, √2r तक आ गया समझ में? हाँ सर। ओके, √2r क्या है मुझे ये बताओ। √2r इज द एडिशन ऑफ वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2, हाँ है ना? ओके हाँ तो वेक्टर 2 वेक्टर 1 हमने इन दोनों का एडिशन होकर निकाल दिया, कौन सा? स्काई ब्लू वाला, सही है। हाँ अब हाँ। मेरे को उसमें क्या ऐड करना है? इसको ऐड करना है ना 3 वाला। तो अपने 3 वाला वेक्टर है कहाँ पे? वेक्टर ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है? 45 ना। तो देखो हाँ। इस वाले डायग्राम के अंदर मैंने उसको बनाया कि जो रेड वाला बनाया ना, एक वो बना दिया। अब मुझे किस किस का ऐड करना है? रेड वाले को ऐड करना है किसके साथ में? स्काई ब्लू वाले के साथ में। हाँ। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल ओके। कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स? 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। उसका एंगल भी 45 बन रहा है, इसका ही 45 बन रहा है। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो उनका एडिशन कैसे निकालते हैं? सिंपल एडिशन। हाँ। तो हमने भी सिंपल एडिशन कर दिया, √2r + r। ओके। हाँ समझा। हाँ भाई, बाकी लोग समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, यस सर। so now see we have covered all the concepts and all the you can say variety of questions of lecture 1 and lecture 2. so I expect कि कल जब अपना क्लास होगा, वैसे कल तुम्हारा मॉर्निंग में क्लास होता है, तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है, फिर भी जितना हो सके क्वेश्चन करो, ठीक है? tomorrow we will start lecture 3, ओके? एंड जो तुम्हारा फिजिक्स वाला ये होगा डाउट लेक्चर जो होगा, उसके अंदर यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 1 लेक्चर 2, ओके? और ट्राई टू कंप्लीट ऑल द। ये कौन, किसका टीवी चल रहा है? ओके चलो थैंक यू ठीक सर। है, Thank you. सी यू टुमारो, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बस